Today, guys, how are you? So today we will discuss 1.3 NCERT for class 12 relations and functions. Clear? Question number first. Question number 1. This is F1, 3 and 4 to 1, 2 and 5 and G 1, 2, 5 to 1, 3. Clear? Given. And F is 1, 2, 3, 5 and 4, 1. Clear? And G 1, 3, 2, 3, 5, 1. Clear? We have to find. थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम 2 मिनट लग रहा है, इसलिए नेक्स्ट उसमें मैं क्वेश्चन लिख के रखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको शो कराऊंगा, ठीक है। तो क्लियर करूं यहाँ पे कि मीन्स क्या है कि फंक्शन जो मीन्स f 1, 2, 3, 4 से 1, 2, 5 में है और g जो फंक्शन है वो 1, 2, 5 से किस में है 1, 3 में है। क्लियर है? ये कभी नंबर नोटेशन जो मीन्स में प्रॉब्लम जो मीन्स हो सकता है, ठीक है। 1, 3, 4, 1, 2, 5, क्लियर, 1, 2, 5 and 1, 3, क्लियर। एंड वी हैव टू फाइंड GOF, clear? So how to count this? GOF1 for this, clear? So F1, this one is GOF1 and GOF1 is F1 is 2, it gives 2. And G2 is here, G2 is 3. Clear? Now G of F3, sorry, means it means GOF means operation of fx in gx, clear, or gy, like this, operation of fx in gx, clear, कि fx का ऑपरेशन जो है gx में कैसे दोगे, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं करना। ऑपरेशन ऑफ क्या F3 इन G, तो इट मीन्स G ऑफ F3, इट मीन्स F3 is 5, क्लियर। F3 is 5. नाउ G5 is 1, क्लियर। G of F4, it means GF4, it means G of F4 means 1 and G of F1 is 3. So G of F is 1, 3, 3, 1 and 4, 3. Is it clear or no? Clear? So in this way we can calculate operation of fx in gx. Clear? Now before pause the video, note it down, guys. This one is second question, clear? And here f, g, h be the functions from R to R, clear? And we have to show f plus h of h, it means operation of h in f plus g is equal to operation of h in f plus operation of h in g. Clear? So for this
let x belongs to R. Clear? Then f plus g of hx is equal to f of hx plus g of hx. It means f of h plus g of h into x, or f of h plus g of h or f plus g of h in this. Clear? तो इन सेम वे वी कैन प्रूव दिस. ठीक है, इसमें भी आपने जो मीन्स एक्स एक वेरिएबल लेना और उसके बेस पे इसको सॉल्व कर देना. ठीक है, कैसे करना है उसको भी देख लो. यहाँ पे देखो कैसे करना है. लेट एक्स बिलोंग्स टू आर. क्लियर? देन एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स. क्लियर? इज इक्वल टू f of hx into g of hx, or f of h into g of h into x is equal to f of h g of h this. Clear? f of g of h is equal to this. x इज रिमूव फ्रॉम बोथ साइड. x क्या हो जाएगा, दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा. तो बहुत सिंपल साइड का कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर. नेक्स्ट है दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव टू फाइंड गॉफ एंड फॉग. ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया कि गॉफ इट मीन्स ऑपरेशन ऑफ एफ एक्स इन जी एक्स एंड ऑपरेशन ऑफ जी एक्स इन एफ एक्स. मतलब ये हुआ कि एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स में सब्स्टिट्यूट करनी है, और यहाँ पे gx जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, fx में x की जगह. तो इसको क्लियर जो में देखना है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन क्लियर. fx इज इक्वल टू x एंड gx इज इक्वल टू 5x minus 2. क्लियर? देन GOF, that is g of fx g fx. Clear? g fx is mod of x. Clear? It means we have to substitute mod of x in place of x in gx. Clear? कि मॉड ऑफ x को gx में x की जगह सब्स्टिट्यूशन दे देना है बस. तो हियर वी गेट मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ x minus 2. क्लियर? इन सेम वे फॉर्म f of gx is equal to f gx. gx means this one 5x mod of 5x minus 2. Clear? It means we have to substitute mod of 5x minus 2 in place of x in fx. So here we get mod of 5x minus 2. Clear? In same way we can calculate this one. Here solution of second part. This one is solution of first part and this one is solution of second part. We have fx is equal to 8x cube and gx is equal to x to the power 1 by 3. Clear? And we have to find GOF. GOF means g of fx is equal to g fx. Clear? It means
value of fx is substituted in place of x in gx. This one is 8x cube, and this one we replace x in gx, so we get 8x cube whole power 1 by 3. It means 2 to the power 3 x to the power 3. Clear? It means 2x. 3 से 3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. Clear? In same way क्या? Fog f of gx. It means gx is replaced in place of x in fx. This one is x to the power 1 by 3, and now this one we replace in this 8x to the power 1 by 3 whole power 3. Clear? And this one will cancel by this. Okay, we get 8x. Clear? So this one is solution of question 3. And here this one is the question number 4. और इस क्वेश्चन के अंदर भी मीन्स आपको क्या करना है? What we have to do in this question? We have to find first one. We have to show f of fx is x. Clear? And f inverse also. Clear? So now first part here, LHS f of fx. Clear? It means fx. Here fx is 4x plus 3 6x minus 4. कंफ्यूजन नहीं करना इसमें. fx को fx में x की जगह सब्स्टिट्यूशन देना है. क्या करना है? We have to substitute value of fx in place of x. Clear? We get 4 of 4x plus 3 upon 6x minus 4 plus 3 over 6 into 4x plus 3 over 6x minus 4 minus 4. Now we have to simplify this. We get this one will be multiplied by this 16x 12, and here we take LCM of this. So this one will be 18x minus 12 over 6x minus 4, and in same way we can calculate this 24x plus 18 minus 24x or plus 16 over 6x minus 4, and here this one will cancel with this. Clear? We get this one 18 plus 16 34x. Clear? And this one 12 is cancelled with this. Clear? And here this one 24x cancel with this, here this one cancel with this, and here we get 34. Clear? Now 34 is cancelled with 34, we get x. Clear? Here in this way we can show f of fx is equal to x. Clear? Now f inverse इसको क्लियर करना है कि f इनवर्स जो मीन्स को हम क्या कर रहे हैं, gy से शो कर रहे हैं. ठीक है? या इसको f इनवर्स x भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना इसमें. ठीक है? क्या इसको जो मीन्स ऐसे भी जो मीन्स लिख सकते हैं कि बिकॉज क्या कि दिस वन नहीं सॉरी इसको अगर मीन्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे ना, ये जो मीन्स थोड़ा सा इसको क्लियर कर देना है. इसको रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे कि लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 ओवर 6x. ठीक, ये इनवर्स निकालने का वे है, कंफ्यूज नहीं करना इसमें कि यही इनवर्स निकालने का वे है. कैसे करना है कल भी मैंने नेक्स्ट जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें भी मैंने डिस्कस किया था 1.2 में, मींस कि इनवर्स कैसे निकालते हैं. तो एक्चुअली इसको y कंसीडर कर लेते हैं, किसको जो fx है दिस वन बी कंसीडर्ड y एंड देन रिप्लेस x इन टर्म्स ऑफ y. क्लियर? और 6xy here 4y is equal to 4x plus 3.
नाउ वी विल कैलकुलेट दिस वन फॉर x, x के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3, क्लियर। और here we take common as 6, we get 6y minus 4 is equal to how much? 4y plus 3, clear? 4y plus 3, clear? Now x is equal to, or x is equal to 4y plus 3 over 6y minus 4. This one is f inverse. Here this one is f inverse or just represent as y, clear? gy भी मीन्स उसको हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं उसको? तो दिस वन इज f इनवर्स और gy, क्लियर? 4y plus 3 over 6y minus 4, clear? Before pause the video, note it down. देखो क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर जो मीन्स क्या करना है आपको, इसमें आपको बताना है कि मीन्स ये देखो यहाँ पे आपके पास जो मीन्स क्या है, 3 फंक्शंस जो मीन्स गिवन है, ठीक है, क्या 3 फंक्शंस गिवन है और आपको ये बताना है कि मीन्स जो मीन्स इसमें से कौन जो इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने आपको जो मीन्स क्लियर किया था कि मीन्स क्या इन्वर्टिबल फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर वो फंक्शन जो मीन्स इन्वर्टिबल है तो रिक्वायर्ड कंडीशन उसके लिए क्या है कि इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे जो मीन्स इसको क्लियर करो, ये देखो इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि इसमें देखो 1 का इमेज, ठीक है, 1 की इमेज और 2 की इमेज, ठीक। तो ये तो मीन्स क्या है 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं, ये मैनी 1 हो गया ना। देखो 1 की इमेज भी 10 है और 2 की इमेज भी 10 है, तो मैनी 1 हो गया, क्लियर। तो दिस वन इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है, इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो इसकी इमेज भी 1 की इमेज भी 10 है और 2 की इमेज भी 10 है, तो मैनी 1 हो गया, सबकी 10 ही है। यहाँ भी ऐसी है, तो मैनी 1 जो इमेज का केस बन गया ये, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं है, नहीं ऑन टू है, तो इसलिए क्या हुआ ये आपका ऑन टू। तो मीन्स एक बार कंसिडर कर भी सकते हैं कि ऑन टू है, लेकिन क्या है इन्वर्टिबल होने के लिए क्या चाहिए 1 1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए, क्लियर। हाँ, अब नेक्स्ट में देखो 5 का 4 है, 6 का 3 है, 7 का 4 है, देखो यहाँ पे पकड़ में आ गई, क्लियर। ये 5 की इमेज भी 4 है और 7 की भी 4 है, इट मीन्स क्या हुआ इट इज नॉट 1 1। और अगर वो 1 1 ही नहीं है तो मीन्स क्या हुआ इन्वर्टिबल भी नहीं होगा, क्यों? कोई भी एक कंडीशन अगर क्या हो जाती है सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि इन्वर्टिबल होने के लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है, इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, द फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू इट मीन्स फंक्शन इज इन्वर्टिबल, क्लियर। तो फाइनल हो गया कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो ये h वाला जो इमेज क्या है 2, इसकी इमेज देखो 2 की इमेज 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 है, 5 की, क्लियर है। कि each element has distinct image, each element have a distinct image, that's why it is 1 1, clear, that's why it is 1 1। and here we have 2 and image of this one is clear, ठीक है, 3 image of this one is 9, 4 image of this one is 11 and 5 image of this one is 13, clear। तो this one function is on 1 1 as well as on 2, that's why it is invertible। बस ये आपको जो सॉल्यूशन में लिखना है क्या कि बिकॉज दिस वन फंक्शन इन्वर्ट कैसे पता लगा 1 1 है कि बिकॉज देखो ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, क्लियर, एंड ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव अ प्री इमेज इन डोमेन, दैट्स व्हाई इट इज 1 1 as well as on 2, hence the function is invertible, क्लियर। अब इसलिए मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रखा है यहाँ पे देखो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, केवल समझाना था आपको, ठीक है। इसमें क्या करना है देखो 6 7 8 जो मीन्स क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं 6 में उसने ये नहीं लिखा है कि इसको इन्वर्टिबल प्रूव करो, बस उसने लिखा है इसका इनवर्स निकालो, क्लियर है, ठीक। तो इन्वर्टिबल वाली कंडीशन भी मैं इसके साथ दे देता हूँ कि मीन्स अगर ये प्रूव हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल, इसके लिए नहीं पूछा नहीं है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने इन्वर्टिबल नहीं पूछा है, ठीक है, इनवर्स पूछा है, ठीक है। 7 8 में उसने इन्वर्टिबल भी पूछ दिया उसको, ठीक। तो मैं बताता हूँ देखो मीन्स इसको क्या करना है, इसको पहले तो मीन्स क्या करना है 1 1 शो करना है। तो 1 1 शो करने के लिए क्या कहा था मैंने कल कि मीन्स क्या सॉल्यूशन देखो इसका, लेट x1 x2 belongs to this,
minus 1. Clear? Then fx1 is equal to x1 upon x1 plus 2 and fx2 is x2 upon x2 plus 2. Then for 1 1, clear? fx1 is equal to fx2. Clear? It means x1 over x1 plus 2 is equal to x2 over x2 plus 2. Clear? Now on cross multiplying this, x1 x2 plus x1 2x1 is equal to x1 x2 plus 2x2. Here this one cancel this one by this and we get 2x1 is equal to 2x2 and here we get x1 is equal to x2. So f is 1 1 function. Clear? Now we have to find inverse of this. तो फॉर इनवर्स के लिए क्या बताया था, क्या करोगे? इनवर्स के लिए कंसीडर करोगे लेट y इज इक्वल टू x ओवर x प्लस 2 और xy प्लस 2y इज इक्वल टू x और here 2y is equal to x minus xy. Now we will take x as common. We get x into 1 minus y. Or here x is equal to 2y over 1 minus y. Clear? Or this one is f inverse 2y over 1 minus y. Clear? Or in other words, here this will be represented by gy. क्लियर? इसी को जो मीन्स क्या है gy से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, तो अब इसको जो मीन्स इसको क्लियर करो जरा यहाँ पे कि इन्वर्टिबल जो मीन्स प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है. तो मीन्स इज दिस वन इज आल्सो इन्वर्टिबल, वैसे लिखा नहीं है इसके इन्वर्टिबल है या नहीं है. तो मैं देखो यहीं पे जो मीन्स आपको क्या कर रहा हूँ, इसको जो मीन्स इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ. ठीक है, तो देखो ये इन्वर्टिबल है या नहीं है. इन्वर्टिबल के लिए क्या है कि मीन्स फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन. ठीक है, इन्वर्टिबल के लिए क्या प्रूव करना है, f ऑफ जी वाई इज इक्वल टू आई वाई एंड g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स. अगर ये जो मीन्स आता है इसका मीनिंग फंक्शन इन्वर्टिबल होता है. ठीक है, तो फिर मैं 7th और 8th क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, इतना आप ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, अगर किसी का बेस कमजोर है तब हो सकता है कि वो ना कर पाए उसको, अदरवाइज बहुत इजीली कर सकता है अगर उसका अलजेब्रिक कैलकुलेशन जो मीन्स क्लियर है तो. ठीक है, तो इसे यही से सॉर्ट हो सकता है बस. अब देखो एक बार इसको समझो इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं कि मीन्स एफ ऑफ जी वाई निकालता हूँ मैं. तो मीन्स एफ ऑफ जी वाई मीन्स जी वाई क्या है, यानी कि ये जी वाई लिख दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है, एंड जी वाई इज दिस 2y over 1 minus y. क्लियर? एंड वी सब्स्टिट्यूट दिस वन इन fx. अब fx क्या है, fx एक देखो गिवन है हमारे पास क्या ये, तो इसमें पुट कर दो इसको. तो 2y ओवर 1 माइनस वाई अपॉन 2y ओवर 1 माइनस वाई प्लस 2. नाउ सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा पर 2y ओवर 1 माइनस वाई. हियर दिस वन 2y प्लस 2 माइनस 2y ओवर 1 minus y. Here this one 2y cancel by this and 1 minus y cancel with 1 minus y. We get 2y over 2. This one will cancel by this. We get y. Clear? Here this one is iy. Now in same way we can calculate g of fx. Clear? क्या g of fx भी जो मीन्स आपने इसी वे में क्लियर करना है, तो उसको भी देख लो कैसे करना है. ठीक है, क्या ये तो क्लियर हो गया ना. ऐसे जो मीन्स एफ एक्स का किस में सब्स्टिट्यूशन देना है, जी वाई में सब्स्टिट्यूशन देना है. किसका, कि एफ एक्स का जो सब्स्टिट्यूशन है वो जी वाई में जो मीन्स देना है. देखो यहाँ पे कैसे करोगे. ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स. क्लियर? और जी एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये देखो एक्स ओवर एक्स प्लस 2 एंड दिस वन विल सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ वाई इन जी वाई. क्लियर? वी गेट 2 into x over x plus 2 upon 1 minus x over
x plus 2. Now simplify this. So 2x over x plus 2, and here x plus 2 minus x over x plus 2. Again this one x plus 2 cancel with this, and here this one negative x cancel with positive x. We get again here 2x over 2. This one cancel by this. We get x. Clear? x means ix. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको ix से. तो क्लियर हो गया कि मीन्स क्या? If f of gy is equal to iy and g of fx is equal to ix, the function is invertible. Clear? तो 6th और 7th और 8th क्वेश्चन को आप इसी वे में सॉल्व कर सकते हैं. 6th में नहीं पूछा हुआ था इसको, लेकिन फिर भी मैंने क्या कर लिया, इसको भी आपको कर दिया, तो इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा 6, 7, 8 एक जैसे क्वेश्चन है, तो ज्यादा नहीं जरूरत करने की. Guys, this one a very important question, and here we have given a function from r plus to this. Clear? मीन्स रियल नंबर है, पॉजिटिव क्यू मीन्स है, बस ये लेके चलना है. ठीक है? और मीन्स गिवन फंक्शन आपको जो है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है. ठीक है? टू शो f इज इन्वर्टिबल. ठीक है? इसको सेम वे में इन्वर्टिबल प्रूव करना है. थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम जो मीन्स इसमें है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन जो मीन्स ले लिया. अदरवाइज 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चन हो गए, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन की बेस पे मैंने इसको ले लिया कि यहाँ पे वैसे तो खैर क्वाड्रेटिक वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको जो पता होना चाहिए इसमें, लेकिन अगर नहीं है तो ये मैं बता रहा हूँ देखो कैसे करना है इसको. इसमें वो कह रहे हैं कि इसको इन्वर्टिबल प्रूव करो, और मीन्स ये तब इन्वर्टिबल होगा जब एफ इनवर्स इतना होगा. क्लियर? तो यानी कि इनवर्स तो निकालना ही निकालना होता है उसमें, जिसको हम जी वाई मीन्स लिखते हैं. ठीक है? तो क्लियर करो यहाँ पे क्या इसमें हम जो मीन्स क्या करेंगे, पहले ये एफ एक्स तो गिवन है, यहाँ पे ऐसे जो मीन्स सॉल्यूशन दे देंगे कि लेट क्या, लेट वाई इज इक्वल टू 9x स्क्वायर 6x माइनस 5. यानी कि पहले इसका इनवर्स निकाल देंगे. इनवर्स कैसे निकालोगे देखो इसको. ठीक है? यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, एम्प्लाइज 9x स्क्वायर 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0. क्लियर? नाउ दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. क्लियर? हाउ टू कैलकुलेट दिस फॉर x? कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि मीन्स देन x इज इक्वल टू. ठीक है? तो क्लियर करो कि मीन्स किससे कंपेयर करोगे इसको कंपेयर करेंगे इससे क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है? इसमें सॉल्यूशन कैसे देते हैं इसका, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e. ठीक? मीन्स ये अगर फैक्टर नहीं होते तो इसमें x की वैल्यू को कैसे जो मीन सॉल्व करते हैं ये है. ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैंने x लिख दिया, कंपेयर करोगे तो a क्या है यहाँ पे 9. ठीक है? b क्या है 6, तो रख दो इसमें वैल्यू. ठीक है? ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू ए यानी कि 9 इंटू सी मीन्स नेगेटिव ऑफ दिस. ठीक है? क्योंकि दोनों का साइन क्या है, ये सी जो है मीन्स की तरह वर्क करेगा. कौन, माइनस 5 इंटू दिस. क्लियर? तो हियर दिस वन इज माइनस 5 प्लस वाई. क्लियर? नेगेटिव साइन लेंगे और मल्टीप्लाई में ये डॉट लगा है यहाँ पे. ठीक है? तो ये डॉट मीन्स ये मल्टीप्लाई है. ठीक है? तो ये क्लियर करो, एंड ओवर 2 इंटू 9. नाउ सिंप्लीफाई दिस वन, वी गेट 6 माइनस 6 प्लस माइनस हियर 36. क्लियर? 36 9 4 9 36 आल्सो. क्लियर? 4 9 36 एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 36 इंटू 5 प्लस वाई. मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, देखो कैसे नहीं कर रहा हूँ. देखो 9 2 18, ये कैलकुलेशन नहीं किया यहाँ पे कि 36 का इस कॉमन आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा. तो माइनस 6 प्लस माइनस 6 एंड हियर वी गेट y प्लस 6. कैसे हो जाएगा y प्लस 6? देखो 36 जब कॉमन यहाँ लेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा. ठीक है? ये 1 प्लस 5 प्लस y, तो उसको हम क्या लिखेंगे, y प्लस 6. एंड हियर वी हैव 18. क्लियर? नाउ दिस वन 18 कैंसिल विद दिस, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ y प्लस 6 ओवर 3. ये देखो 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 18 कैंसिल हो जाएगा किससे, 18 कैंसिल हो जाएगा 6 से 3 टाइम्स. क्लियर? ये जो मीन्स इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल जो मीन्स हो जाएगा. ठीक? तो नाउ वी हैव x इज दिस, इट मीन्स दिस वन इज gy. ये क्या है, gy है या f इनवर्स y लिखा है इसने, तो f इनवर्स y में वही हुआ. क्लियर है? तो कंफ्यूजन नहीं करना. नाउ वी हैव टू सो दिस वन इज इन्वर्टिबल फंक्शन. अब हमने जो मीन्स क्या शो करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है. तो इन्वर्टिबल के लिए मैंने क्या कहा था कि f
अब इसको तो है थोड़ा सा मुझे इरेस्टिमेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये तो खैर क्लियर हो गया ना, ये तो फर्स्ट आंसर तो आपका आगे, बस केवल इसको आगे पीछे लिखना है क्या, ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर देना कि यहाँ पे लिमिट्स क्या है, ये आगे पीछे लिमिट लिख देना y + 6 और -1 कर दो, ठीक है, अपॉन 3 कर दो, ताकि कंफ्यूजन जो में हट जाए, क्योंकि उसने पॉजिटिव वाला लिख रखा है तो पॉजिटिव वाला भी लिख सकते हो उसको, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। तो ये पार्ट तो इधर सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। क्या करने के लिए कि ये जो इमेज क्या है, इन्वर्टिबल कैसे है, क्योंकि इसके लिए क्या करना है, f(gy) भी करना है, ठीक है। तो देखो अभी जो इसी में कर दे रहा हूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको जो है देखो कैसे करना है। हाँ, फॉर इन्वर्टिबल, ठीक है, कि f(gy), पहले f क्या निकाल देते हैं, gy निकाल दें, यानी कि gy को किसमें सब्स्टिट्यूशन देना है, gy को जो मीन्स fx में जो है आपको सब्स्टिट्यूशन देना है, ठीक है। देखो कैसे करें, तो आपका जो मीन्स ये इसको आप लिखेंगे f(gy), क्लियर, एंड gy इज दिस वन, √y + 6 - 1। इसको क्लियर करना कि -1 रूट से बाहर है, केवल रूट इसके ऊपर है, इसका क्लियर करना, एंड over 3. Now substitute this one value in fx. We get 9 into y + 6 root of this -1 square of this over 3. Clear? And this 6 into root of y + 6 - 1 over 3 and -5. Now we will simplify this one. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करोगे तो उसको नोटिस करना है, कैलकुलेशन कैसे हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन का जो इमेज फोकस करना है ये, ठीक है। क्लियर करो यहाँ पे, जब इसको देखो दिस वन √y + 6 एक्ट एज सिंगल टर्म a, तो हियर स्क्वायर ऑफ दिस वन इज y + 6 + 1 -2 √y + 6। हियर वी अप्लाई a - b to the power 2, a - b का होल स्क्वायर यूज कर दिया, a² + b² - 2ab, एंड हियर दिस वन इज 9। ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो 9 से 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल जो हो जाएगा, क्योंकि बाहर इसके क्या है 9 है ना। हियर दिस वन 6, क्लियर, ये जो मीन्स क्या है 6 से 2 टाइम्स का जो है कैंसिल, ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो दिस वन इज 2 into y + 6 - 2 और -5, क्लियर। नाउ वी हैव here this one we cancel with this, and here 6 + 1 7 and -2 minus this y + 7 - 7, this one we cancel with this, we get y, it means iy, here this one is iy. In same way we will calculate now g of fx. In same way we get this one, g of fx, clear, it means g, in g we will substitute this 9x² 6x - 5, clear, and we have this one √9x² 6x - 5 + 6 - 1 over 3. Now simplify this. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट दे रहा है, ये आपको जो रिजल्ट दे रहा है ये है 9x² 6x और +1, क्लियर, एंड दिस वन इज -1 over 3. We get this one is 3x + 1 to the power 2, and square root of this we cancel with this, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, -1 over 3, and this one -1 is will cancel with +1, and we get 3x over 3, and this one 3 will cancel by this, we get x, it means this one is ix, clear, hence the function is invertible function, ठीक है। कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन ये लिखोगे कि सिंस क्या f of gy is equal to iy and g of fx is equal to ix, therefore f is invertible, clear. So before pause the video, note it down, guys. This one
That's very important in case of, because here we have this one, prove f is यूनिक इनवर्स ओनली, ठीक है। f के पास केवल यूनिक इनवर्स, यूनिक इनवर्स का मीनिंग हुआ कि मीन्स कोई भी डबल इनवर्स नहीं होगा इसका, ठीक है। तो कैसे प्रूव करते हैं इसको, देखो यहाँ पे कि मीन्स गिवन है जो f फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, क्लियर, एंड बी आई इन्वर्टिबल, जो आपका f है वो इन्वर्टिबल है, क्लियर। तो इन्वर्टिबल है तो मीन्स क्या हुआ, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो मीन्स क्या होता है उसके लिए, since f is invertible, therefore f of gy is equal to iy, and g of fx is equal to ix, clear। Let f have g1 y and g2 y to इनवर्सेस, क्लियर। हमने कंसीडर कर दिया कि f के पास जो है टू इनवर्सेस है, प्रूव ये करना है कि इसके पास एक ही इनवर्स होता है, क्या ये प्रूव करना है कि इट हैज ओनली यूनिक इनवर्स। यूनिक इनवर्स का मतलब हुआ कि मींस वन एंड ओनली वन इनवर्स। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टू जो मींस इनवर्सेस ले लिए, ठीक है। तो क्या करना है आप देखो यहाँ पे, देन f of g1y is equal to this one, definitely f g1y or this one is iy, clear, and f of g2y, it means f of g2y, f of gy, clear, and here this one will be also iy, clear। So hence it is clear that so f of g1y is equal to f of g2y or g1y is equal to g2y, hence f has unique inverse, क्लियर। तो ऐसे जो में इसका सॉल्यूशन आप दे देते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, देखो 11 और 12, 11 का एग्जांपल ही 12 में दे दो, ठीक है। शो करना है उसके अंदर तो मीन्स इसी का एग्जांपल दे दो ना, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं रह जाती, ठीक। तो इसलिए जो मीन्स उसका सॉल्यूशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, 11 का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो 12 इसीलिए जो मीन्स यही एग्जांपल दे दो उसके अंदर, क्योंकि यही करना है उसके अंदर, ठीक है। तो क्लियर करो कि यहाँ पे देखो क्या मतलब हुआ इसका मीनिंग हुआ कि मीन्स क्या, कि सिंस f1 इज इक्वल टू a, देन f इनवर्स, तो f इनवर्स मीन्स a इज इक्वल टू 1, क्लियर है। f इनवर्स जो मीन्स करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसी जो मीन्स f2 इज इक्वल टू क्या है, b है, तो देन f इनवर्स b इज इक्वल टू क्या, ये f उधर जाएगा b, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्लियर। ऐसे क्या है f3, दिस वन इज c, देन f इनवर्स c इज 3, क्लियर। नाउ इनवर्स ऑफ दिस, अब इसका भी अब जो अगर इनवर्स पूछेगा तो इनवर्स मिल गई है। इनवर्स क्या मिला, मतलब ये हुआ कि f इनवर्स जो मीन्स अगर आपको लिखने के लिए बोलेगा, सो क्या, सो f इनवर्स, तो f इनवर्स आपका जो मीन्स क्या है यहाँ, a1 a2 b2 and c3, this one is f inverse। now f inverse to the power inverse, मतलब उसकी पावर भी मीन्स इनवर्स का इनवर्स ले लिया, तो इनवर्स का इनवर्स लोगे तो क्या करोगे, उल्टा कर दोगे इसको, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, ये 1 a 2 b एंड 3 c, और यही क्या होता है,
एफ होता है। क्लियर है? अरे यही क्या है, एफ है, बस इम्प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपने यही करना है, ठीक। तो मीन्स मेरे हिसाब से जो है मीन्स क्या, अब इतना ज़्यादा जो मीन्स प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि 13 फिर आपका ऑप्शनल है, और जो मैंने मीन्स मेथड समझाए मुझे लगता है कि मीन्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। ट्राई करोगे, और नहीं तो फिर जो मीन्स कमेंट जो मीन्स करोगे कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अभी वो कमेंट्स जो है आपकी तरफ से नहीं आ रहे हैं जो आने चाहिए थे एक्चुअल में, ठीक है। या तो आप जो मीन्स लॉकडाउन की वजह से जो मीन्स क्या है उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो पढ़ाई जो मीन्स ऐसा होता है कि जब आपको जो मीन्स रिक्वायर्ड है, अगर आप तभी करेंगे इसको, तो दैट्स इम्पॉसिबल फॉर द सक्सेस, ठीक है। ये जो मीन्स क्या है, मीन्स वो सक्सेस आपको गेन नहीं हो सकती जो मीन्स अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे तो उसी समय करना है जब एग्जाम आने वाला है, ठीक है। एग्जाम आने वाले जो मीन्स टाइम जो करते हैं वो केवल जस्ट पास होने के लिए करते हैं। जिन बच्चों को कुछ अलग से जो मीन्स करना है उनका कंटिन्यूस जो मीन्स क्या होता है, वर्क रहता है। और प्लीज कंटिन्यू स्टडी फॉर अ कंटिन्यूस ड्यूरेशन and for a particular time, fixed time. Clear? If you will study continuously, study wins the race. You have already heard this one proverb, study wins the race. ठीक है। जो मीन्स सतत जो मीन्स वर्क करते हैं वो सक्सेस जो मीन्स होते हैं, तो प्लीज ऐसा जो मीन्स वर्क करो, ठीक है। फिर जो मीन्स नेक्स्ट जो मीन्स अब तो मेरे ख्याल से जो है अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन वाली एक्सरसाइज है, ये जो मीन्स क्या है, ये हटा दी गई है, ठीक है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो मीन्स मिसलेनियस के अंदर जो मीन्स कुछ क्वेश्चन हैं जो इस पे बेस्ड होंगे, तो मैं उसको भी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। Thanks for watching.